نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ حکومت پاکستان کی طرف سے حج بیت اللہ کی اسکیم 2026 کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے، گو کہ اس کی کچھ چیزیں ابھی بھی کام ہو رہا ہے اور وہ فائنل نہیں ہوئی ہیں، لیکن کافی زیادہ چیزیں گورنمنٹ نے ابھی تک فائنل کر کے عوام کے لیے اس کے انفارمیشن کو شیئر کر دیا ہے۔ اس کے اندر گورنمنٹ کی پالیسیز 2026 کے لیے کیا ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ذریعے سے اگر ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ حج پیکج کیا ہے، اگر ہم پرائیویٹ کے ذریعے سے حج پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کا پیکج کیا ہے، اگر اوورسیز پاکستانی یا ساتھی ہیں تو ان کے بارے میں کیا انسٹرکشنز ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہم اس ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ ہماری یہ تمام ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل حج بیت اللہ پہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے حج بیت اللہ کے نام سے واٹس ایپ چینل اور واٹس ایپ گروپس بھی ہیں۔ اگر آپ کو اپڈیٹس چاہیے ہیں زیادہ تو واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں۔ اگر آپ کے کچھ سوال ہیں تو مرد حضرات کے واٹس ایپ کے گروپس الگ ہیں، خواتین کے واٹس ایپ کے گروپس الگ ہیں، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے مطلوبہ گروپس جوائن کر لیں اور آپ اپنے سوال وہاں بھیج سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ آپ ان سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ دعا کریں کہ وہ تمام ساتھی جو اس تمام اعمال میں لگے ہوئے ہیں اور بے لوث فی سبیل اللہ آپ جیسے حجاج کی خدمت میں ہیں، اللہ پاک ان سب کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو آئیے آج ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے اس سال حج کی پالیسی دی ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا جو پچھلے سال کا کوٹا تھا حج کا، وہ 1,79,210 حاجیوں کا تھا، اور ابھی تک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کوٹا کی کنفرمیشن یا فائنلائزیشن تو نہیں آئی ہے، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ کم سے کم اتنا کوٹا تو انشاءاللہ العزیز رہے گا۔ اس کے علاوہ پاکستانی وزارت حج سعودی گورنمنٹ سے کئی سال سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ ہمارا کوٹا بڑھایا جائے اور 2,40,000 ہمارا کوٹا کیا جائے۔ تو آپ سب احباب دعا بھی کریں کہ اس سال ہمارا کوٹا بڑھ جائے تاکہ زیادہ احباب اس سال پاکستان کی طرف سے حج بیت اللہ کے لیے حاضری کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ اس سال تقریباً 4.5 سے 5.25 لاکھ افراد نے حج کی خواہش کا اظہار کیا اور رجسٹریشن فارم بھرے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس سال زیادہ تر احباب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ پچھلے سال یا پچھلے سالوں کی ترتیب یہ رہی ہے کہ جتنا بھی پاکستان کا کوٹا ہوتا تھا اس میں سے آدھا سرکاری حج اسکیم کے تحت یا گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت حاجی جاتے تھے اور آدھا جو تھا وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جاتے تھے۔ اس سال اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور 1,19,210 ہے، یا لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو 1,19,210 حاجی سرکاری حج اسکیم کے تحت جائیں گے، جس میں سے 1,000 ہارڈ شپ کوٹا رکھا گیا ہے اور 60,000 پرائیویٹ حجاج کو دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سال جو پرائیویٹ حج آرگنائزرز کا کوٹا کم کیا ہے، تو اس بات کو لے کر پرائیویٹ حج آرگنائزرز اور گورنمنٹ پاکستانی وزارت حج کے درمیان میں کچھ تنازعات چل رہے ہیں اور ابھی تک یہ تنازعات فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ فائنل ہوں گے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اپڈیٹ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سال گورنمنٹ حج اسکیم کے اندر کیا پالیسی دی گئی ہے، کیا سہولیات دی گئی ہیں، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس سب چیزوں کے اوپر ہم اس ویڈیو میں نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چیدہ خصوصیات یا کی انسٹرکشنز کیا دی گئی ہیں ہمیں اس سال گورنمنٹ حج اسکیم کے لیے۔ تو سب سے پہلی جو انسٹرکشن جس کے اوپر گورنمنٹ بہت زیادہ ایمفسائز کر رہی ہے وہ ہے پہلے آئیے اور پہلے پائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,19,210 جو حاجیوں کا کوٹا گورنمنٹ کو دیا گیا ہے، تو جیسے ہی حج کے رجسٹریشن فارم شروع ہوں گے انشاءاللہ 4 اگست سے، تو یہ کوٹا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس دن یہ کوٹا پورا ہو گیا اسی دن حج کی اپلیکیشن فارم لینا بند کر دیا جائے گا اور پورٹل کو بند کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سے پہلے ہم اپنا حج کا فارم بھروا لیں گورنمنٹ کے ذریعے سے یا پرائیویٹ کے ذریعے سے، تاکہ ہمیں کنفرم حج کا ویزا مل سکے اور ہم جا سکیں۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے یا رہ گئے تو چانس نہیں ملے گا۔ دوسری چیز جو گورنمنٹ نے بالکل کلیئر بولی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی 1,19,210 نشستیں مکمل ہو جائیں گی، 1,19,210 فارم بھر جائیں گے، اسی ٹائم سسٹم کو بند کر دیا جائے گا
और ऑनलाइन सिस्टम भी बंद हो जाएगा और बैंकिंग का सिस्टम भी बंद हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट के ज़रिए से हाजी नहीं जा सकेंगे। तीसरी अहम चीज़ जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो ये है कि वो अफ़राद जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, अगर वो हज पे जाना चाहते हैं, तो वो 4 अगस्त पीर के दिन से लेकर 9 अगस्त तक हज का फ़ार्म भर सकते हैं। इससे पहले या इसके बाद इन लोगों को हज का फ़ार्म भरने की इजाज़त नहीं होगी। तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है कि 4 अगस्त से 9 अगस्त तक के दरमियान में आपने हज का फ़ार्म भरना है। और ये फ़ार्म कैसे भरना है आगे इसी वीडियो के अंदर हम इसको शेयर करेंगे। तो आपने ये समझ लेना है जैसे पहले शुरू से जब रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हुई थी तो हम इस चीज़ की आवाज़ लगा रहे थे कि आप 2 चीज़ों का ख़ुसूसी तौर पे बंदोबस्त रखें। उसमें से एक चीज़ थी कि आपके पासपोर्ट रेडी हों और दूसरी अहम चीज़ ये थी कि आपके पास पेमेंट का बंदोबस्त हो। क्योंकि इस साल बिल्कुल क्लियर ये नज़र आ रहा था कि ये बहुत शॉर्ट डेडलाइन के अंदर चीज़ें चलेंगी और पेमेंट भी बहुत शॉर्ट डेडलाइन में ली जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 4 अगस्त से 9 अगस्त तक रजिस्टर्ड अफराद भर सकते हैं। अगर 4 अगस्त से 9 अगस्त के दरमियान कोटा पूरा हो गया तो सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर 9 अगस्त की तारीख गुजर गई और कोटा पूरा नहीं हुआ और कुछ फार्म बाकी रह गए, तो गवर्नमेंट 11 अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए सिस्टम दोबारा खोलेगी और अब की दफ़ा जो गैर रजिस्टर्ड अफराद हैं, जो कि हज की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके थे, उनको इस चीज़ का मौका दिया जाएगा कि वो पेमेंट करके अपने हज के फार्म भर सकते हैं। तो ये खुशाइन बात भी है गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा साथियों की तरफ से ये सवाल आ रहा था कि अब हम किस तरह हज पे जा सकेंगे? तो एक मौका है, लेकिन ये मौका जब मिलेगा जब 9 अगस्त की तारीख गुज़र जाए और मतलूबा तादाद में फ़ार्म नहीं भरें। अगर 9 अगस्त की तारीख से पहले मतलूबा तादाद में फ़ार्म भर गए तो ये मौका नहीं मिल सकेगा। अगर ये मौका मिलता है तो गैर रजिस्टर्ड अफराद फ़िल-फ़ौर अपने पासपोर्ट और पेमेंट का बंदोबस्त करके रखें और जैसे ही 11 अगस्त से दोबारा ये सिस्टम खुलता है तो आप फ़िल-फ़ौर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें। क्योंकि इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जिस दिन 1,19,210 फ़ार्म पूरे हो गए उसी दिन सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। इस साल गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत 2 पैकेज निकाले हैं। एक लॉन्ग पैकेज है जो कि 38 से 42 दिन के करीब होगा और इस पैकेज के लिए अगर आपको बुकिंग करानी है या इस पैकेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए एडवांस आपको जमा कराना होगा। पिछले सालों में गवर्नमेंट की ये तरतीब रही है कि 3 किस्तों में पैसे लिए जाते थे और कई महीने का टाइम दिया जाता था। इस साल जो है वो ये तरतीब नहीं है, इस साल सिर्फ़ 2 किस्तों में पैसे लिए जाएँगे और पहली किस्त 5 लाख रुपए आपको फ़ौरन जमा कराने होंगे। पिछले साल 2 लाख रुपए जमा करा के आप हज का फ़ार्म भर सकते थे। इस साल 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। दूसरा पैकेज जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो शॉर्ट पैकेज है जो कि 20 से 25 दिन के दरमियान होगा और अगर आप शॉर्ट पैकेज के लिए जाना चाहते हैं तो कम से कम 5,50,000 या साढ़े 5 लाख रुपए आपको लाज़मी जमा कराने होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो दूसरी किस्त है पेमेंट की या आखिरी किस्त है वो पहली नवंबर तक आपको जमा करानी होगी और वो कितनी होगी उसका ऐलान नवंबर में ही किया जाएगा। इस साल जो लॉन्ग पैकेज गवर्नमेंट ने बनाया है वो 11,50,000 रुपए से लेकर 12,50,000 रुपए तक का है और इसके अंदर वेरिएशन इसलिए रखी गई है कि अभी तक गवर्नमेंट ने सऊदी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हो जाएँगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा कि इस साल लॉन्ग पैकेज कितने का होगा और जितने का भी होगा उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो 5 लाख जिन्होंने पहले एडवांस जमा करा दिए हैं, बाकी फिर पैसे उनको पहली नवंबर तक जमा कराने होंगे। एक अहम चीज़ जो इसके अंदर आपको इस साल दी जा रही है, वो ये है कि कुर्बानी इसी पैसों में, इसी पैकेज में शामिल है और कुर्बानी सऊदी कंपनी अवाही के ज़रिए से की जा रही है और ये सऊदी अरब की तरफ से पाबंदी है कि इस साल हज वाले अदाही के ज़रिए से ही इस कुर्बानी करेंगे और प्राइवेट तरीके से कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। तो जब ये लॉन्ग पैकेज फाइनल हो जाएगा तो उसके फ़र्क से शॉर्ट पैकेज का फाइनलाइज़ेशन अमाउंट दिया जाएगा और उसके बाद आपको पहली नवंबर तक ये पैसे बाकी पैसे जमा कराने होंगे जो साढ़े 6 लाख या साढ़े 7 लाख या जितने भी बनेंगे वो आपको फ़ौरन जमा कराने होंगे। अगस्त के महीने में आप पहले पैसे जमा करा देंगे तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने की आपको फुर्सत मिल जाएगी। तो नवंबर में लाज़मी पैसे जमा कराने हैं। अगर किसी ने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी और किसी वजह से दूसरी किस्त जमा नहीं करा सका, तो पिछले साल भी तकरीबन 2 लाख या ढाई लाख रुपए काट के उनका फ़ार्म कैंसल कर दिए गए थे। तो आप ये ख़्याल रखिएगा कि इस साल भी 2 लाख ढाई लाख या शायद इससे ज़्यादा पैसे काटने पड़े हैं आपके, तो आप सोच समझ के पैसे जमा कराइएगा। तो ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक असबाब बनाए और सहूलत के साथ अब इंशाअल्लाह हम सब हज पे जाएँ।
इस साल हज का फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल भी दिया जाएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है applyonline.hajinfo.org, उसी पोर्टल के ज़रिए से आप अपना हज का फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट रिसिप्ट निकाल के आप पेमेंट ऑनलाइन भी करा सकते हैं। या आप चाहें तो गवर्नमेंट ने 14 मिजाज बैंकों को इस चीज़ का इख्तियार दिया है कि वो हज के फॉर्म भर सकते हैं। पीर वाले दिन 4 अगस्त से हर बैंक के बाहर आपको इस चीज़ के बैनर्स लगे हुए नज़र आ जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन भर सकते हैं तो ऑनलाइन भर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं तो आप किसी भी मिजाज बैंक में जाके अपने हज के फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए किन कागजात की ज़रूरत है, तो आइए हम उन चीज़ के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि हज की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें किन कागजात की ज़रूरत होगी। तो सबसे तो पहली चीज़ ये है कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट या ई पासपोर्ट आपके पास एक्टिव होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी डेट 26 नवंबर 2026 या इसके बाद की होनी चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप हज का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो उसके लिए फिल फॉर आप पासपोर्ट बनवाएँ और फिर उसके बाद जो पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको टोकन मिलेगा, तो उस टोकन के ऊपर आप हज का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट है और वो वैलिड नहीं है, तो आप उसी पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें और टोकन के ज़रिए से आप हज का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट अभी वैलिड है, लेकिन मिसाल के तौर पर वो जून 2026 में या मार्च 2026 में एक्सपायर हो रहा है और 26 नवंबर तक वैलिड नहीं है, तो आप इसी पासपोर्ट पे हज का फॉर्म भर सकते हैं और हज का फॉर्म अप्लाई करके आप फ़ौरन से पासपोर्ट की रिन्यूअल डाल दें और उसके बाद जब आपके पास पासपोर्ट रिन्यू होके आ जाए, तो आप सिस्टम में अपडेट करवा सकते हैं। पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए अब आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑनलाइन सिस्टम है जिसकी अलग पूरी एक वीडियो बना के आज से 2-3 हफ्ते पहले भेज दी गई थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। तो आप उस पूरी वीडियो को देख के अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए से अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है और आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो भी उसकी तमाम तर डिटेल उसी वीडियो में दे दी गई हैं। तो आप उस वीडियो को देखकर उस वीडियो की मदद से अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उसके टोकन की मदद से हज की एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि अभी इन दिनों के अंदर जल्द अज़ जल्द अपने पासपोर्ट की तैयारी करके रख लें, ताकि आप पीर वाले दिन पहली फुर्सत में अपना पासपोर्ट जमा करवा सकें। दूसरी अहम चीज़ जो आपको हज की एप्लीकेशन के चाहिए, वो आपके कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, आगे और पीछे से अच्छी तरह क्लियर। तो ये आप फ़ौरन बना के रखें। अगर आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड नहीं है, तो उसको फ़ौरन नादरा से वैलिड करवा लें, रिन्यू करवा लें। इसके अलावा नादरा का ऑनलाइन सिस्टम है, जिसके ज़रिए से आप घर बैठे भी अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवा सकते हैं, तो आप उसको फ़ॉलो कर लें। इसके अलावा 4 अदद तस्वीर 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर की आपको तस्वीर बनवा के पासपोर्ट के साथ, शनाख्ती कार्ड के साथ जमा करानी है। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि इस साल सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ तस्वीर जमा करानी है। पहले कभी ब्लू बैकग्राउंड के साथ जमा करानी होती थी, तो आप गलती से ब्लू बैकग्राउंड के साथ तस्वीर जमा नहीं कराइएगा। सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ तस्वीर जमा कराइएगा। तो इस चीज़ का ख़ुसूसी तौर पे ख़्याल रखें। इसके अलावा आपका जो मौजूदा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो कौन-सा नंबर क्या है और उसका नेटवर्क कौन-सा है, ज़ोंग, यूफ़ोन, मोबिलिंक, ये आपको इन्फॉर्मेशन अपने हज की एप्लीकेशन फ़ॉर्म में देनी होगी। इसी वीडियो के आखिर में हम आपको हज का एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी दिखाएँगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये आपको बताना होगा। अगर आप कन्फर्म हैं, तो आप लिखवा दें। अगर आप कन्फर्म नहीं हैं, तो किसी भी पैथोलॉजी लैबोरेटरी से ब्लड का टेस्ट करवा लेंगे, तो ब्लड ग्रुप का आपको मिल जाएगा और उस टेस्ट की रिपोर्ट आप अपनी हज एप्लीकेशन के साथ जमा करवा सकते हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही लिखवाइएगा, गलती नहीं हो इस चीज़ के अंदर। इसके अलावा नादरा का कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट जो नादरा की वेबसाइट से या नादरा के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है, इसकी मामूली सी फ़ीस होती है। इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसकी भी आप तैयारी करके रखें। इसकी तस्वीर आपको यहाँ नज़र आ रही है, इससे मिलता-जुलता सर्टिफ़िकेट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट है, इसका टेम्पलेट आपको अभी इस वीडियो में भी दिया जाएगा, उसका डाउनलोड लिंक भी दिया जाएगा। तो आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो बैंक से भी आप इसका खाली सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं और उसको लेके उसको भरवा के किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको अटेस्ट करवा के आप जमा करवाएँगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि वो तमाम मरीज़ जो कि डायलिसिस के मरीज़ हैं, जिनके दिल, गुर्दे, फेफड़े, जिगर में कोई आर्ज़ा लाहक है कि जिसकी वजह से वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं, या आपको कोई आसाबी बीमारी है या आपकी कोई
خدا نخواستہ کینسر یا اس کے جیسا کوئی مرض لاحق ہے، آپ کیموتھراپی یا ریڈیو تھراپی کروا رہے ہیں، یا جس ٹائم آپ حج کے لیے سفر کریں گے یعنی کہ مئی 2026 میں، اس ٹائم اگر آپ حاملہ ہیں اور کم سے کم 5 مہینے یا اس سے زیادہ کا حمل ہے، تو ان تمام لوگوں کو اس سال سعودی عرب کی طرف سے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا کہ یہ فٹنس سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کروا کے آپ نے جمع بھی کروانا ہے۔ اس کے علاوہ حاجی کیمپ جب آپ جائیں گے تو آپ کا دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، اور اگر آپ یہاں سے پاس ہو کے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پر یا مکے میں یا مدینے میں، اور وہاں پہ یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا کہ آپ غلط فٹنس سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے حج پہ جانے کے بعد پیچھے آپ کے وارث کون ہوں گے اس کی ڈیٹیل آپ کو حج کی اپلیکیشن کے اندر دینی ہے۔ یہ وارث وہ شخص ہونا چاہیے جو اس سال حج پہ نہیں جا رہا ہو اور آپ کا بلڈ ریلیٹو ہو۔ تو آپ کے وارث کا قومی شناختی کارڈ کی تصویر آگے پیچھے سے یا فوٹو کاپی آپ کو جمع کرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس وارث سے آپ کا رشتہ کیا ہے یہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ اس وارث کا موبائل نمبر اور اس کا نیٹ ورک، یہ انفارمیشن بھی آپ کو حج کی اپلیکیشن میں لازمی جمع کرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس ادارے سے NOC لے کے حج کی اپلیکیشن کے ساتھ لازمی جمع کروانا ہے۔ اس کے بغیر آپ حج کے لیے نہیں جا سکیں گے، آپ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جیسے کئی سوال ہمارے پاس آ رہے تھے کہ لوگوں نے مثال کے طور پر الگ الگ جگہ پہ حج کی رجسٹریشن کروا لی ہے لیکن وہ حج کے لیے ایک ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس ٹائم آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ 4 یا 6 لوگ مل کر فیملی کا ایک فارم ہے، اس کی تصویر بھی آپ کو دے دی جائے گی یا فارم دے دیا جائے گا، اس کو بھر کے آپ دے سکتے ہیں اور آپ لوگ ایک ساتھ گروپ بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی آپشن دیا جائے گا کہ فری آف کاسٹ آپ 6 لوگوں کو ایک سیپریٹ روم دے دیا جائے جس کے اندر آپ لوگ ایک ساتھ رہیں۔ مثال کے طور پر 3 بھائی 3 بہنیں ہیں، یا 3 بھائی اور ان کی ازواج ان کے ساتھ اگر جانا چاہتی ہیں اور یہ سب ایک ہی روم میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر حج کا فارم بھرتے ہوئے اس چیز کو ٹک کر سکتے ہیں، اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ آپ کو یہ آپشن مل سکتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کا گروپ بڑا ہے 8 10 15 20 افراد کا ہے تو آپ اتنا بڑا گروپ نہ بنائیں، آپ گروپ میکزیمم 6 افراد کا بنائیں تاکہ ان 6 افراد کو الگ روم مل سکے یا 6 افراد ساتھ سفر کر سکیں۔ تو اگر آپ کا بڑا گروپ ہے 15 20 افراد کا تو اس کو 6 6 کے 5 5 کے ٹکڑوں میں توڑ کے ان کے حج فارم بھرتے وقت ان کے گروپ بنا سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اس سال یہ بھی آپشن دیا ہے کہ اگر آپ 2 بیڈ سنگل روم لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پروویژن ہے۔ اس صورت کے اندر جیسے ایک میاں بیوی کی فیملی جا رہی ہے اور وہ 2 بیڈ سنگل روم لینا چاہتے ہیں تو جو بھی ان کا حج کا پیکیج بنے گا اس پیکیج میں 2 لاکھ روپے فی کس یا فی فرد زیادہ دینے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر اگر 11.5 لاکھ روپے کا پیکیج بن رہا ہے تو فی فرد 13.5 لاکھ روپے ان کو جمع کرانے ہوں گے اور ان کو ٹک کرنا ہوگا فارم پہ، تو اس صورت میں ان کو 2 بیڈ سنگل روم مل سکتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی ہے، یعنی کہ جو ہوٹل یا جو بلڈنگ آپ کو دی جائے گی اس میں اگر 2 بیڈ روم ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو یہ پیسے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے اور آپ کو شیئرنگ میں ٹھہرایا جائے گا۔ شیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 یا 5 یا 6 لوگوں کے روم ہوں گے، مرد حضرات کے روم الگ ہوں گے، خواتین کے روم الگ ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ 3 بیڈ سنگل روم لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پروویژن دی گئی ہے، اور اس صورت میں فی فرد 67,000 روپے اضافی رقم آپ کو دینی پڑے گی، اور یہ رقم ابھی نہیں بلکہ جب آپ 1 نومبر کو ریمیننگ پیمنٹ کریں گے تو اس ٹائم آپ کو جمع کرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ پروویژن دی گئی ہے کہ وہ آن لائن فارم بھر سکتے ہیں، یا تو وہ آن لائن پیمنٹ پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں منسٹری کے، یا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ بھیجیں، ان کے رشتہ دار یہاں پر گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں یا بینک میں جمع کرا دیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو حج کی یہ پیکیج کی رقم ہے وہ آپ کیش بھی جمع کرا سکتے ہیں، کراس چیک بھی جمع کرا سکتے ہیں، DD بھی جمع کرا سکتے ہیں، پے آرڈر کی شکل میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ ہماری جو بات ہوئی ہے بینک والوں سے یا منسٹری والوں سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کراس چیک یا پے آرڈر کی شکل میں جمع کرائیں گے تو وہ زیادہ ایتھینٹک ہے، اور اس صورت کے اندر آپ کا اپنا جو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری آ جائیں گی۔ تو اس فارم کے اندر آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، بینک کا نام، آئی بین نمبر یہ بھی لازمی جمع کروانا ہے تاکہ اگر آپ کا ریٹرن آتا ہے تو وہ اس اکاؤنٹ میں ہی آئے گا آپ کے پاس، تو کیونکہ اگر آپ پے آرڈر یا DD کی شکل میں، کراس چیک کی شکل میں جمع کرائیں گے تو یہ انفارمیشن زیادہ ایتھینٹک مانی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے۔
एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कही है, वो ये है कि वो अपने उस मुल्क से हज पे नहीं जा सकते हैं। हज पे जाने के लिए उनको पहले पाकिस्तान आना होगा, फिर यहाँ के किसी एयरपोर्ट से वो सफ़र करके हज पे जाएँगे। तो इसके लिए उनको तैयारी करनी होगी, पैकेज उनका भी सेम ही रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी अदर डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दे दी हैं। ये पूरी तस्वीर या इसके पूरे सर्कुलर या ब्रोशर जो हैं वो आप ग्रुपों के अंदर शेयर कर दिए गए हैं। तो आप इस पूरी डिटेल्स को पढ़ लें, समझ लें। इसके अंदर अगर कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर सकते हैं और वहाँ पे जो साथी बैठे हुए हैं वो आपको उन तमाम सवालों के जवाब देते रहेंगे। आइए अब हम नज़र डालते हैं उस हज के एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ऊपर जो कि हमें इस साल भर के जमा करवाना है। तो फ़ॉर्म बहुत बड़ा है इसलिए इसको टुकड़े करके 2 या 3 टुकड़ों में आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप सहूलत से पढ़ सकें, समझ सकें। तो इस साल तस्वीर होगी, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। आप अगर आप खुद लीडर हैं या आप मेंबर हैं, आपका ग्रुप साइज़ क्या है? अगर आपका कोई लीडर है तो उसका नंबर क्या है? इसके अलावा आप लॉन्ग में जाना चाह रहे हैं या शॉर्ट में जाना चाह रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन हैं। अगर आपको रूम चाहिए या शेयरिंग बेसिस चाहिए तो इसको भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। किस एयरपोर्ट से आप डिपार्चर करना चाहते हैं, इस साल कई एयरपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है तो अपनी मर्ज़ी का एयरपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का भी ख़्याल रखिएगा कि पिछले साल कराची एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों के पैसे कम और इस्लामाबाद वालों के ज़्यादा होते थे। इस साल सबके पैसे बराबर रखे गए हैं। इसके अलावा आपका महरम कौन है, उसकी डिटेल्स आपको देनी है, आपका एड्रेस, आपकी तहसील, पासपोर्ट नंबर, इश्यू अगर पासपोर्ट नंबर नहीं है तो टोकन नंबर आपको देना होगा। इसके अलावा डिपॉज़िट कब करवाया है आपने, अमाउंट कितना है। इसके अलावा ये जो नॉमिनी इन्फॉर्मेशन है ये आपके वारिस होंगे। खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे अगर आपकी वहाँ पे शहादत हो जाती है या कोई नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस सूरत में आपके नॉमिनी से राब्ता किया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर क्या है, अगर कन्वर्टेड है या नहीं है, इसका नेटवर्क कौन-सा है, वैक्सीनेशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपको लाज़मी तौर पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्या हैं, आईबैन नंबर, अकाउंट टाइटल, ये सब कुछ आपको हर अकाउंट होल्डर के लिए देना होगा। एक ही अकाउंट नंबर 2 या 3 के लिए दिया जा सकता है। आखिर में एक हलफनामा है जिसका आपको कन्फर्म करना होगा, जिसके ज़रिए से ये हज फ़ार्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, आइए हम उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो आपको बता दी गई थी कि वो तमाम बीमारियाँ जिसकी वजह से आप हज पे नहीं जा सकते हैं, वो आपके सामने है। इसके अलावा ये जो डॉक्टर इसको अटेस्ट करेगा, उस डॉक्टर की पूरी डिटेल भी देनी है, इसके अलावा आपकी डिटेल देनी है। खुदा न ख़ास्ता अगर आपको कोई एलर्जी है, तो उसकी डिटेल देनी है। अगर आपकी कोई क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ हैं दिल की वग़ैरह तो आपको वो तमाम इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करनी है। और आखिर के अंदर इसको अटेस्ट करेंगे वो डॉक्टर और आपकी तस्वीर भी लगेगी यहाँ पर। बगैर अटेस्ट किए ये काबिल कबूल नहीं होगा। किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से अटेस्ट नहीं करवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके आपको अटेस्ट करवाना होगा या डीएचक्यू अगर आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है, तो वहाँ से इसको आप अटेस्ट करवा सकते हैं। ये वो तमाम मुख्तसर चीज़ें थीं। पासपोर्ट रिन्यू करवाने की पूरी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जा रहा है। उस वीडियो को देख के आप पासपोर्ट फ़ौरन रिन्यू कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन बाकी हैं और पीर के दिन आप इसको टोकन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने तमाम कामों को छोड़कर सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, पैसे रेडी करें और कोशिश करें कि पीर वाले दिन सबसे पहले आप ये अप्लाई कर दें। अगर आप प्राइवेट हज स्कीम के तहत सफ़र करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि वो तमाम हाजी जो पिछले साल सफ़र नहीं कर सके थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन ये दी हैं कि वो उसी हज ऑर्गेनाइज़र से उसी पैसों में इस साल हज के लिए जाएँगे और कोई इज़ाफ़ी पैसे वो ऑर्गेनाइज़र आपसे नहीं ले सकता है। एक दूसरी चीज़ का ये ख़्याल रखिएगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोटा के ऊपर गवर्नमेंट का और प्राइवेट जो हज ऑर्गेनाइज़र है, होप उनका डिस्प्यूट चल रहा है और ये लोग आपस में कोशिश कर रहे हैं सेटल करने की। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द इनकी सेटलमेंट हो जाए और गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि पीर से प्राइवेट हज वाले भी अपना रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फ़ॉर्म शुरू कर दें। लेकिन होप की तरफ से जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइज़ेशन की हज की ऑर्गेनाइज़ेशन है, हज ऑपरेटर्स की, उनका क्योंकि डिस्प्यूट है इस वजह से नज़र नहीं आ रहा कि पीर से ये लोग हज के एप्लीकेशन ले सकेंगे। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द इनके डिस्प्यूट को हल फरमाए और जल्द अज़ जल्द प्राइवेट हुज्जाज भी इस सा हज के लिए जा सकें। इसके अलावा जैसे ही मज़ीद डिटेल आएँगी तो आपके सामने शेयर की जाएँगी। हमारी अलग वीडियो है कि हज प्राइवेट पैकेज वर्सेस गवर्नमेंट पैकेज, तो उस वीडियो को भी आप व्यू कर सकते हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट पैकेज में सफ़र करना चाहिए या प्राइवेट पैकेज में सफ़र करना चाहिए। इसके अलावा कोई सवाल हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे वीडियो के क्वेश्चन आंसर या कमेंट्स में कर सकते हैं।
ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔